Dear students, today I am going to start chapter number 4, A Question of Trust from your English textbook, Footprint Without Feet. In this chapter, the story A Question of Trust is based on the robbery committed in a house at Shotover Grange. Two professional thieves and burglars come face to face while on the same mission of robbing a safe in a house. Both of them made elaborate preparations to make the theft a complete success. Horrocks Denby robbed a safe every year only to buy rare and expensive books. He was caught red-handed by a lady in red. The young lady in red was also a thief, but she presented herself as the lady of the house. Horrocks, in confusion, requested her to go away. She threatened to call the police. At last, a compromise was reached. The cost of Horrocks' freedom was settled. He was to open the safe and hand over the jewels to her. Horrocks thought that he was opening the safe for the lady of the house, for the landlady of the house. He handed the jewels over to her and went out happily. He had forgotten to wear his clothes and left his fingerprints on the safe. After 2 days, Horrocks was arrested on the basis of those fingerprints left on the safe. A grey-haired 60-year-old lady, the wife of the owner of the house, stated that Horrocks' story was nonsense. So now students, now we will read this story and I explain for you. Everyone thought that Horrocks Denby was a good, honest citizen. यानी सभी क्या सोचते हैं कि हॉरस डेवी एक अच्छा ईमानदार सिटीजन है. He was about 50 years old. कितनी years old है वो? 50 years old. And unmarried. और unmarried है, अविवाहित है. And he lived with a housekeeper who worried over his health. और वह एक चौकीदार के साथ रहता है जो उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित रहता था. वास्तव में वास्तव में he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वह एक्चुअली काफ़ी हैप्पी रहता है, काफ़ी स्वस्थ है, पर लेकिन सिर्फ गर्मी में उसको जुखाम बुखार हे फीवर से वो पीड़ित हो जाता है. इसके अतिरिक्त तो वो काफ़ी प्रसन्न और स्वस्थ रहता है. He made locks and was successful enough at the business. और वो ताले बनाने का काम करता है और अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल है. उसने 2 हेल्पर भी रखे हुए हैं. यस, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. हाँ, ये सही है कि हॉरस डेवी एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति है पर वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पहले वह एक कारावास पुस्तकालय में अपनी पहली और इकलौती सजा काट चुका है. He loved rare, उसको प्यार है किससे? रेयर एक्सपेंसिव बुक से. So he robbed a safe every year. तो वो क्या करता है? हर साल एक सेफ को रॉब करता है, चोरी करता है वहां पर. Each year he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. इसलिए वह हर वर्ष एक तिजोरी लूटता था. प्रत्येक वर्ष वह बड़ी सावधानी पूर्वक योजना बनाया करता था. उसे करना होता था. इतना धन वो सोचता था कि इतना धन चुराया करता था वो कि जो एक पूरे वर्ष तक चल सकता है. और वह अपनी किसी के एजेंट थ्रू वो चुपचाप अपनी मनपसंद जो किताबें थी, कॉस्टली किताबें थी, वो खरीद लिया करता था. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others.
जुलाई महीने की चमचमाती धूप में घूमते हुए से इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि इस बार की चोरी भी अन्य चोरियों की तरह उतनी ही सक्सेसफुल रहेगी as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. तो उसने क्या किया कि चोरी भी कि वह शॉटोवर ग्रेज जो एरिया है वहाँ पर वो घर का 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था, उसके कमरों की, बिजली के तारों की, रास्तों की और बागों को देख रहा था। उस दिन दोपहर बाद जब नौकर, जो उस घर के नौकर थे जो ग्रेंज में रहते थे, जबकि परिवार लंदन में रहता था, फिल्म देखने जा चुके थे, हॉरिस ने उसे जाते हुए देखा और नाक में गर्मी के ज्वर का असर होने के बावजूद वह प्रसन्न हो रहा था। और उसने क्या किया, बाग के जो दीवार थी, गार्डन की जो दीवार थी, उसके पीछे से बाहर आया और औजार जो उसकी पीठ के पीछे एक थैले में थे सावधानी पूर्वक बंधे हुए थे। Horrocks saw them go and felt happy in spite of little trickle of a fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. Grange safe में कितने के ज्वेल्स थे? करीब 15,000 पाउंड्स के. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. कि उसको और भी 5,000 रुपीज मिलेंगे, जिससे कि वो हर साल से भी ज्यादा खुश हो सकेगा, रह सकेगा. There were 3 very interesting books coming up for the sale in autumn. पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आ रही थीं. अब उसे तो बहुत अच्छी पुस्तकें और कॉस्टली पुस्तकें खरीदने का शौक है. सो नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. तो अब उसे ये अपने आप को, उसको ये अच्छा लगा कि अब धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि वह अपनी मनचाहे पुस्तकें खरीद सकेगा. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of clothes. उसने क्या देखा कि उसे चौकीदार को बाहर रसोई के दरवाजे के ऊपर खूंटी पर चाबी टांगते हुए देख लिया था. उसने अपने ग्लव्स निकाले और उनको पहन लिया, चाबी ली और दरवाजा खोला. वह बहुत एंड ओपन द डोर. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल. वह हमेशा केयरफुल रहता था नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, कि कोई भी फिंगरप्रिंट वो ना छोड़े जिससे कि वो पकड़ा न जाए. ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. उसने देखा कि किचन में एक छोटा सा डॉग लेटा हुआ है. इट स्टेड, वो थोड़ा सा हिला. मेड अ नॉइज, थोड़ा सा शोर भी किया उसने, और मैत्रीपूर्ण ढंग से अपनी पूंछ हिलाई. एंड मूव्ड इट्स टेल इन द फ्रेंडली वे, और फ्रेंडली वे में अपनी टेल भी हिलाई. ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ड. जब हॉरिस उसके पास से गुजरा तो उसने कहा, शेरी ठीक है, कुत्ते को शांत रखने के लिए आपको उनके सही नामों से पुकारना होता है. एंड शो दिए देम लवर, उनको प्रेम दिखाना होता है. The safe was in the drawing room. Safe कहाँ थी? Drawing room में. Behind a rather poor painting, Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. तिजोरी बैठक में थी, एक घटिया सी पेंटिंग के पीछे थी. हॉरिस एक पल के लिए हैरान हुआ कि क्या उसको पुस्तकों के स्थान पर चित्रों का संग्रह कर लेना चाहिए. इसलिए वो बहुत स्थान लेती हैं, और उसका घर तो एक छोटा था, तो उसने सोचा कि छोटे से घर में पुस्तकें ही बेटर हैं. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स. मेज पर फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था. एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल. अब क्या हुआ कि हॉरिस को अपने नाक में कुछ परेशानी, खुजली सी महसूस हुई. उसे हल्की सी छींक आ गई. He gave a little sneeze and then put down his bag, और उसने अपना बैग नीचे रख दिया.
He carefully arranged his tools. उसने अपने tools निकाले, अच्छे से उसको अरेंज किए. He had 4 hours before the servants returned. और उसने क्या सोचा कि नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय है, तो उसको अपना काम पूर्ण कर लेना चाहिए ठीक से. The safe was not going to be hard to open. तिजोरी खोलना कोई कठिन कार्य नहीं था उसके लिए. After all, he had lived with locks and safes all his life. क्योंकि वो उसने अपना पूरा जीवन तालों और तिजोरियों के बीच ही गुजारा था. The burglar alarm was poorly built. और जो जो चोर घंटी थी, जो बर्गलर अलार्म था, वो बहुत ही घटिया बनी थी. वह उसके तारों को काटने के लिए हॉल में गया और वापस आया तो उसे जोर से छींक आई, क्योंकि फूलों की सुगंध उस तक वापस आ गई थी और उसको फूलों की सुगंध की एलर्जी थी. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. हैरिस ने सोचा, जब लोगों के पास मूल्यवान वस्तुएं होती हैं तो वो कितनी मूर्खता करते हैं. पत्रिका and a magazine article had described this house. एक मैगजीन आर्टिकल ने उस हाउस को डिस्क्राइब किया था. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल रूम, सब रूम के प्लान दिए थे उसमें, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम का पिक्चर भी दिया था. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ. और राइटर ने ये भी इस बात का भी उल्लेख किया था कि तस्वीर के पीछे एक तिजोरी छुपी हुई है. बट Horace found that the flowers were hindering him in his work. लेकिन हॉरस ने पाया कि फूल इसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, इसलिए उसने चेहरा रुमाल से ढक लेता है. एंड ही buried his face in his handkerchief, so he hid his face in his handkerchief. Then he heard a voice say from a doorway, "What is it?" अचानक से वो क्या सुनता है कि तभी गलियारे में यह कहती हुई आवाज सुनी, यह क्या है, जुकाम या गर्मी का बुखार, ए कोल्ड और हे फीवर. बिफोर ही कुड थिंक, वो कुछ सोच पाता उसके पहले हॉरस सेड हे फीवर. क्या बताता है कि वो हे फीवर है. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. क्या सो देखता है कि उसको वापस से छींक आ जाती है. द वॉइस वेंट आउट. उस आवाज ने कहा, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. कि आप एक विशेष विधि द्वारा इसका इलाज कर सकते हो. यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज. कि सिर्फ आप पता लगा लें कि ये बीमारी आपको किस पौधे से होती है. मैं सोचती हूँ आपको डॉक्टर से मिलना ठीक रहेगा. आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. यदि आप अपने काम के प्रति गंभीर हो तो मैंने आपकी आवाज को अभी छत पर, घर की छत पर सुना था. इट वॉज क्वाइट. यह एक शांत काइंडली वॉइस थी. बट वन विद फर्मनेस इन इट. लेकिन इसके अंदर एक फर्मनेस भी थी. A woman was standing in the doorway. एक जो लेडी थी वो डोरवे पर खड़ी थी. And Sherry was rubbing against her. और शैरी जो था उसके पास में उसके शरीर से अपना शरीर को रगड़ रहा था. She was young. वो यंग थी, quite pretty, खूबसूरत थी. And was dressed in red. और किस कलर के कपड़े पहने थे उसने? रेड कलर के. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वह चलकर अंगीठी तक आई और वहां उसने जेवर फैला दिए. डाउन शैरी, शी आस, उसने कहा. लेट जाओ शैरी, वह बोली. सभी समझ जाएंगे कि मैं 1 महीने. शी सेड एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ. कि सभी जान जाएंगे कि मैं 1 महीने से बाहर गई हुई थी. वह गई हुई थी. शी स्माइल्ड एट हॉरस. यह देखकर वो हॉरस को देख करके स्माइल किया उसने. And went on. However, I came back just in time. अच्छा वो मैं समय पर वापस आ गई. Though I didn't expect to meet a burglar. अद्यपि मैंने आते ही चोर से मिलने की आशा नहीं की थी. Horace had come hope because she seemed to be amused at meeting him. हॉरस को कुछ आशा थी कि क्योंकि वह उससे मिलकर प्रसन्न लग रही थी, यदि वह उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे तो वह इस संकट से बच सकता था. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family.
मैंने भी घर में किसी सदस्य के मिलने की आशा नहीं की थी। शी नॉडेड, उसने अपना सर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस, मैं देख रही हूँ आपको मुझसे मिलकर क्या परेशानी हुई। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। आप क्या करने जा रहे हो? वॉट आर यू गोइंग टू डू? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार ये कि मैं तुमको देखकर भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यस यू कुड डू दैट, आप ये कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं क्या करूंगी, तब तक मैं पुलिस को टेलीफोन करके सब कुछ बता देती हूँ, वे तुम्हें तुरंत काबू में कर लेंगे। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। मतलब हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स, हॉरेस ने कहा मैं सबसे पहले टेलीफोन के तार काट देता और तब कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, तब आप क्या करते? ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, वह थोड़ा हिचकिचाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। मैं इस बात को यकीन करता है कि तुम कुछ समय के लिए तो कुछ भी न कर सकती, मेरे लिए कुछ घंटे ही पर्याप्त होते हैं। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ फॉर मी। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, उसने उसकी ओर गंभीरता पूर्वक देखा, तुम मुझे चोट पहुंचाते, हर्ट करते। हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. हैरिस थोड़ी देर चुप रहा, तब उसने कहा, मैं सोचता हूँ जब मैंने ऐसा कहा तो तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था। The voice was suddenly sharp. You didn't frighten me, लेकिन तुमने तो मुझे नहीं डराया। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, कि अगर तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो वॉइस थी सडनली शार्प हो जाती है, उसकी आवाज एकदम से शार्प हो जाती है। मैं क्यों जाने दूं कि वॉइस सडनली शार्प, व्हाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे रॉब करने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो, अगर तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को ठगोगे और की चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को, समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल, हॉरेस ने स्माइल किया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए खतरा बनूं। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनके घर ही चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं बहुत अच्छी रीजन के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के विचार से भी घृणा है। हियरिंग इट, ये सुन करके शी लाफ्ड, द लेडी होती है वो बहुत जोर से हंसी। एंड ही बैग्ड, थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वह हंस पड़ी, उसने यह सोचते हुए याचना की कि उसने उसे मना लिया है। देखो, मेरा आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं परेशान हूँ, मुझे जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि कभी इस प्रकार का काम नहीं करूंगा, यह मेरा वास्तविक अभिप्राय है। वह शांत थी, उसने निकटता से निहार रही थी, तब उसने कहा, तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो क्या? तुम डर नहीं रहे हो? She was silent, वो चुप थी, watching him closely. Then she asked the Horace, you are really afraid of going to prison? क्या तुम सचमुच में डर रहे हो जेल जाने से? She came over to him, shaking her head. वह शांत थी, वह अपना हर सिर हिलाते हुए उस तक आ गई। मैंने हमेशा गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। I have always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने क्या किया? उसने मेज के ऊपर से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली, और हॉरेस ने उसे पसंद करने के लिए उत्सुक होते हुए, यह देखते हुए कि उसकी मदद करेगी, अपने दस्ताने उतारे और अपना सिगरेट लाइटर उसे दे दिया। You will let me go. He held the lighter towards her. आप मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर उसकी ओर किया। Yes, but only if you will do something for me. हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। Anything you say, कुछ भी जो आप कहें, I am ready.
बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, कि हमारे लंदन जाने से पहले, आई promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. लेकिन मैं उसको सेफ में छोड़ गई थी. I want to wear them to a party tonight. लेकिन आज मुझे पार्टी में वो सब पहनना है. So I came down to get them, but कि वही लेने में नीचे आई थी. और लेकिन हॉरिस स्माइल करता है, मुस्कुराया. आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई हैं, यही बात है ना. यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. Young lady replied, yes, she forgot the number to open the safe. Just leave it to me. अरे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. And you will have them within an hour. 1 घंटे में मैं आपको देता हूँ. But I will have to break your safe. लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सेफ को तोड़ना पड़ेगा. Don't worry about that. The lady replied the Horace. Don't worry, इसकी चिंता मत करो. My husband won't be here for a month. मेरे husband 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं है. And I will have the safe mended by that time. और इस टाइम में मैं अपनी सेफ को मेंड करा लूँगी, मरम्मत करवा लूँगी. And within an hour, Horace had opened the safe. और 1 घंटे के अंदर ही हॉरस ने तिजोरी खोल दी. Horace had opened the safe, given her the jewels. और उसको आभूषण दे दिए और खुशी खुशी बाहर चला गया. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, तीसरे दिन क्या होता है? 2 दिन तक तो उस दयालु महिला से किया, अपना वायदा निभाया. तीसरे दिन सुबह, हालांकि however, he thought of the books he wanted and knew he would have to look for another safe. अब सोच रहा है, बुक्स के बारे में सोच रहा है कि उसे कोई दूसरी सेफ देखनी पड़ेगी. But he never got the chance to begin his plan. अपने प्लान शुरू करने का उसको कोई चांस नहीं मिला. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. और दूसरे दिन ही पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया. शॉर्टवर्क ग्रेज में चोरी करने के अपराध में वो गिरफ्तार हो चुका था. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने क्या किया था कि विदाउट ग्लव्स के उसने फिंगरप्रिंट उसके जो सेफ उसने खोली थी उस पर थे. वर ऑल ओवर द रूम and no one believed him when he said that the wife of owner of the house had asked him to open the safe for her. पर जब उसने सबको बताया कि उस घर की मालिक की पत्नी ने अपने उसके लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था, मकान मालिक की पत्नी ने, जो सफ़ेद बालों पैनी जुबान वाली लगभग 60 वर्षीय महिला थी, ने कहा यह सब कुछ बकवास है. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60,